chain, the way UPSC has put its syllabus, it is in a very smooth manner, and you will find that there is a clear-cut link. और एक once you have understood that link, ये बहुत आसान. My forefathers, they discriminated against his or her forefather. So why should I suffer for the crimes of my forefathers? ये वाला segment और ये वाला segment दोनों यहाँ पे आता है. This is how the classes will run. Always ensure you have a limited set of thinkers with their ideas and develop the art that how the same thinker can be used in 3 different type of questions. So it is all about कि वो हमें यहाँ पे use कैसे कर. आपने वो सीख लिया, मामला set. Okay, so you see, as I had seen in that Google form that you people had been put and you people have filled up, most of you are those who are looking towards 2025. So it is very much important that whatever doubts you have got, whatever it is, please ask. Because unless you ask, I can only answer those questions or I can explain only those things which I think that this might be doubtful for you. So unless you ask it, and believe me, whatever you are asking, whatever you are going to ask, I shall be answering all of it. No time limitations, nothing restrictions. Okay. So before I go for the topic that is deconstructing the PSIR syllabus, I looked at the Google form and there was something that I found quite interesting. It was asked that what is the purpose, and many of you had simply written strategy. And this is the first lesson, not only for the UPSC, but for your whole life. What UPSC wants you is to be precise, whether it is your essay paper, optional paper, GS paper, or even during the interview. When you said me that you want me to discuss a strategy for what? You will say that strategy for PSIR. But even within PSIR, it could be how to start. It could be how to revise. It could be about how to answer writing. It could be about making notes. So unless you are precise in your questions, how can you expect me to answer that? So this is my very first suggestion to you, that be precise in your questions and definitely you will get precise answers, the answers that you want. ठीक है? अब एक और बात है जो कि मैं PSIR से पहले what I want to talk about is generally UPSC. You see, what the conventional wisdom about the UPSC is that you need to focus on ethics plus optional plus essay. है ना? Conventional wisdom यही कहता है that these are the papers that can make or break you. But I have got a somewhat different thinking. And I shall be explaining that to you. ठीक है ना? देखो, what I think is that I break this UPSC, this whole journey or the papers that we have got into 4 different segments. Pre क्या है? Pre तो just qualifying in nature है, इसके marks से कुछ लेना देना है. But mains plus interview, I divide it into 4 separate compartments. One is essay, another is GS. You have got 4 papers. Then you have got optional, and then you have got interviewer personality. ठीक है? So what my understanding and my experience with respect to UPSC is that if you want yourself to be in the list
इन चार में से कम दो ऐसे पेपर होने चाहिए ना जिसमें यू नीड टू डू एक्सट्रीमली वेल, बट एट द सेम टाइम जो बाकी दो है ना वो ठीक रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो में बहुत अच्छा हो गया, एक बिल्कुल डिक्कर। आउट ऑफ दीज फोर, if you are doing exceptionally well in one, then definitely you will get the interview call. But if you did not do well in interview, again you won't be in the list. अब चाहे आप ऑप्शनल की बात कर लो, चाहे जीएस के 4 पेपर्स की बात कर लो, चाहे ऐसे की बात, इन तीन में से अगर एक में इफ यू परफॉर्म वेल you will get till the interview, but again you will be on the borderline and you need to do extremely well in the interview, that is 180 plus 190 plus. लेकिन if you do not want कि मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू डिपेंडेंट, देन इन तीन में से दो में आपको एक्सट्रीमली वेल। मैंने पुराना वाला जो कन्वेंशनल तरीका जो था which was ethics plus optional plus essay, why did I reject this? Because if you look this time, students they have not been given good marks in essay. तो ये इसे देखते हो, और ये अभी का नहीं, मेरा पिछला जो भी मेरी यूपीएससी की जर्नी रही है उसके बेसिस पर ये मेरा आउटकम निकला है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जाना और आप टॉपर्स के मार्कशीट या दोज पीपल हु कुड नॉट गेट रिकमेंडेड उनकी मार्कशीट एक बार निकाल करके देखो। दिस इज समथिंग यू विल डेफिनेटली फाइंड कि जिसने एक में अच्छा किया और इंटरव्यू में भी अच्छा नहीं हुआ, दैट पर्सन कुड नॉट। ठीक है, सो दैट इज वाई गेम स्टार्ट होता है, वाई ऑप्शनल इज दिस मच इंपॉर्टेंट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल, देखो बात क्या है, ऑप्शनल यू हैव गॉट 250 into 2, दैट इज 500 मार्क्स। ऑप्शनल की एक खास बात, द स्पेसिफिक थिंग अबाउट ऑप्शनल इज दैट इट may not ensure your selection, but it can definitely ensure your rejection. Even if you have performed well in your optional, you have got 300 marks in your optional, but if you have not performed well in your GS or your essay or interview, you won't be in the recommended list. लेकिन अगर ऑप्शनल को आपने डुबा दिया, अगर आप ऑप्शनल में 200-220 नंबर ला रहे हो ना, you will definitely be not in the list. Because optional is that only paper जो कि इंश्योर कर सकता है you score 50 to 60% of marks. 500 का 50%, 250, 60%, 300. एक और ऐसा पेपर है जो है एस। तो दिस टाइम दिस परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इट वाज नॉट दैट ग्रेट, मार्क्स यूपीएससी ने उतने अच्छे नहीं दिए। देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु कुड क्रॉस 120, बट व्हेन यू लुक एट ऑप्शनल, इट इज द ओनली पेपर व्हिच कैन एंश्योर, व्हिच कैन गारंटी दैट यू गेट 50 to 60% ऑफ मार्क्स। जीएस में तो 50% भूल ही जाओ, हार्डली कोई ऐसा है जिसे 500 नंबर मिला है, चारों पेपर मिला। सो दैट इज वाई ऑप्शनल इज वेरी मच क्रिटिकल अक्रॉस योर यूपीएससी जर्नी। ठीक है, अच्छा, व्हाट वाज योर करंट रिलेशन विद स्टैटिक? ओके हर्षवर्धन, आई शैल बी डिस्कसिंग दिस, टेंशन मत। ठीक है, सो आफ्टर डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑप्शनल, अब देखो मैं आपको पहले बताता हूं हाउ दिस इज गोइंग टू बी दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ PSIR एज ऑप्शनल, बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव दिस कंफ्यूजन whether PSIR I should take or I should not take, whether PSIR is going down, marks are not being awarded. ये सारे कंफ्यूजन के लिए ही आई शैल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ PSIR एज एन ऑप्शनल। देन आई विल गो फॉर
deconstructing the syllabus. And why would I do this? Because एक और आपके दिमाग में डाउट है that PSIR is too lengthy, PSIR is too dynamic. I will prove to you that it is not that lengthy if you have understood how to approach the paper. बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ आ जाएगा whether it is lengthy and dynamic. And Harshvardhan, here only I will address that how this dynamic portion, how we have to incorporate in our notes, in our answer. ठीक है। Then this approach, note making, आंसर राइटिंग। सो एक बार ये मैंने डिस्कस कर लिया ना, उसके बाद फिर प्राइमरली इट विल बी योर क्वेश्चंस, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव गॉट यू कैन आस्क एंड आई शैल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट PSIR एज एन ऑप्शनल, you see this is the only optional that has got your maximum overlap with the GS. To a certain extent I can say that even if you do not have PSIR as an optional, through your GS only you are going to read roughly 30 to 35% of the PSIR syllabus. कम से कम 30 से 35% आप पढ़ लेते। And when you are looking at paper 2, roughly 70 to 75% of paper 2, it has got direct overlap with the PSI. वो सब मैं जब मैं आपको syllabus, when I shall be showing you, you yourself will realize that yes, there is such a significant overlap, and that overlap makes it far more easier for us कि पेपर 1 का बी पार्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वो भी प्रिपेयर हो जाए और जीएस का पेपर 2 भी प्रिपेयर हो जाए और दोनों में अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब हम PSIR की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीएस में यू हैव गॉट पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री में यू हैव गॉट नेशनल मूवमेंट्स, राइट। तो नेशनल मूवमेंट का जो भी है ना, चाहे आप गांधीयन स्ट्रेटेजी की बात करो, मॉडरेट्स की स्ट्रेटेजी की बात करो, व्हाट वर द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, व्हाट वर देयर लिमिटेशंस, व्हाट हाउ कांग्रेस क्रिटिसाइज्ड इट, वो सारे का सारा आपका IGP में आप पढ़ते हो। नेक्स्ट इज when you are talking about GS2 में शुरुआत से लेकर अंत except for the governance portion, it is IGP plus India and the world, because नीचे के जो 4 क्वेश्चन IR वाले होते हैं ना, it is simply impossible that a PSIR student does not know those 4 questions of IR that holds 50%. उसके अलावा whether you are talking about federalism or you are talking about democracy, judiciary, grassroots democracy, local self government, वो सारे institutions, वो सारे का सारा we read in IGP. Now when you are going to GS3 में जब आप सिक्योरिटी पोर्शन है, उसमें भी 50 नंबर का सिक्योरिटी है ना, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 19, 20, वहां पे भी जो बॉर्डर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गॉट क्वेश्चन रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इश्यूज रिलेटेड टू टेररिज्म और मैरीटाइम सिक्योरिटी, everything gets covered in your IR, because when we are discussing about India China और इंडिया म्यांमार, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में हाउ वी आर एंगेजिंग विथ आसियान नेशंस और पाकिस्तान, नेचुरली टेररिज्म इज एन एंगल इन दैट, सिक्योरिटी उसका एंगल ऑब्वियस है। सो अगेन इन GS3 यू हैव गॉट अ
दो लिमिटेड बट देयर इज एन ओवर। एंड जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स, तो आप एथिक्स में जाकर के देख, वेदर इट इज अबाउट गांधीयन 7 सिंस, वो हमें पढ़ना होता है। उसके अलावा एक बार आ चुका है जस्टिस, तो वी रीड जस्टिस इन डिटेल। अब नेचुरली द आंसर्स विल डिफर, कैसे डिफर करेगा वो हम क्लास में देखें। बट अगेन इन GS4 also you find there is a, in a limited sense only, but there is an overlap, because ethics primarily revolves around some normative ideas like justice हो गया, equality हो गया, और PSIR में हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। We read all these things. So naturally for ethics also your thinking gets matured। और जब आप ethics में देख रहे हो, वहां पे थिंकर्स तो रहते हैं ना, प्लेटो को पढ़ना है, अरिस्टोटल को पढ़ना है, बुद्ध को पढ़ना है, गांधी को पढ़ना है, और वो सब यहाँ पे पढ़ना है हम। ओके, सो और इंटरव्यू के तो बात ही छोड़ दो, बिकॉज इन इंटरव्यू every student is asked questions related to international relations irrespective of what your option is। तो इंटरव्यू के तो उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, बिकॉज एनीवे यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इस तरीके से दैट इज व्हाई आई से दैट मिनिमम 30 to 35%। यहां पे फर्क क्या पड़ जाता है ना, कि यहां पे वॉट एवर वी आर रीडिंग ये थोड़ा सुपरफिशियल होता है, जीएस में सुपरफिशियल होता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल, ऑप्शनल में वी गेट इनटू अ बिट डीपर। और ये डीपर इन प्रेजेंट टाइम्स दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर स्कोरिंग बेटर, बिकॉज अगर आप 2019-20 से अभी का एग्जाम देखोगे ना, सो नाउ द आंसर्स इवन इन जीएस पेपर्स इट इज मोर कंटेंट डेंस। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात कर लो, आर्टिकल्स की बात कर लो, गवर्नमेंट एक्ट्स, अमेंडमेंट्स, रिपोर्ट, कमेटी रिपोर्ट्स की बात कर लो, तो अगर वो सब आपने यहां पढ़ रखा है, विच बिकॉज दैट इज कोर ऑफ PSIR, तो इट इज ऑल अबाउट कि वो हमें यहां पे यूज कैसे करना। आपने वो सीख लिया, मामला सेट। ओके, सो आई होप इसका रिगार्डिंग दिस इफ यू पीपल हैव गॉट एनी डाउट PSIR के ओवरलैप के रिगार्डिंग, बिकॉज हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस कि जीएस में भी काम बन जाए, वो मैं आगे डिस्कस करूं, ठीक है ना। सो अभी तक वी हैव डिस्कस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ PSIR एज एन ऑप्शन। नाउ लेट मी कम टू, अब PSIR starts the core course. So you see, the very first thing is, क्योंकि I hope most of you are new to this, so the very first thing that I want to discuss with you is कि PSIR में हमें पढ़ना क्या, what is it that we study in PSIR? Because unless we know what is it that we study or we have to study, how can we assess that what type of optional this is and whether it is going to be a beneficial optional for me or not? ठीक है, so you see there is a very common question, if you think कि there was a time of kings and queens, king was there, monarch, his son, he will be the next king, a coterie of advisors, and बाकी सारी प्रजा होती थी, they were subjects। But when we look at today, सिचुएशन ऐसा है कि आज पब्लिक जिसके भी सपोर्ट में आ जाए वो राजा बन जाएगा। इफ आई टॉक इन लीगल टर्म्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो ये इवोल्यूशन हुआ क्यों, हुआ कैसे? पॉलिटिकल साइंस कुछ और नहीं, बस यही पढ़ने का। देखो दो चीजें होती, आपने अक्सर पढ़ा होगा, एक टर्म आता है नेशन, एक टर्म आता है स्टेट। नेशन
क्योंकि हम बात करते हैं इंडिया में नेशनलिज्म, नेशन, नेशन हर जगह। नेशन क्या होता है? नेशन एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल आइडेंटिटी की बात। जैसे कि जब भी कोई सेसेशन की बात होती है एक टाइम पे, when South was talking about or Tamil Nadu was talking about, आपने सुना होगा तमिल नेशनलिज्म और तमिल सब नेशनल। Why? Because they wanted to have a separate identity based on the cultural idea of language. वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, रेस के बेसिस पे हो सकता है, एथनिसिटी के बेसिस पे हो सकता है, द वे वी लुक एट यूरोप। बिकॉज ऑल ऑफ जर्मन्स दे केम टुगेदर, जर्मन नेशनहुड, दे मेड अ स्टेट। तो स्टेट क्या हो गया? स्टेट का मतलब हो गया दिस इज अ लीगल एंटिटी। ये लीगल टर्म है स्टेट। हम नॉर्मली देखते हैं बिहार एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, महाराष्ट्र इज अ स्टेट, तमिलनाडु इज अ स्टेट। बट इन in the language of political science, these are provinces. These cannot be state. क्योंकि स्टेट उसके कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज टू हैव अ गवर्नमेंट, it needs to have sovereignty, there needs to be a population, geography। तो गवर्नमेंट तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, पॉपुलेशन भी है, जियोग्राफी भी है, बट डज महाराष्ट्र हैव सोवरेनिटी? नो। So Maharashtra, in terms of political science, Maharashtra is not a state, it is a province. India is a state। ठीक है? तो सवाल यही उठता है कि फ्रॉम मोनार्की टू प्रेजेंट डे डेमोक्रेसी, हाउ दिस एवोल्यूशन टुक? बेसिकली पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी अबाउट। ओके, so in PSIR, the very important thing is that there are a set of thinkers that you will, जब आप सिलेबस को देखोगे ना, second last point you will find a set of thinkers. Their name will be something like this: Plato, Aristotle, then you have got Machiavelli, Hobbes, Locke, J.S. Mill, मार्क्स, ग्रामसी और हाना आरेंट। ठीक है? सो आपको देखने में लगेगा इतने सारे थिंकर्स हैं, दिस विल बी समथिंग, बट देयर इज समथिंग, देयर इज अ वेरी स्मूथ chain, the way UPSC has put its syllabus, it is in a very smooth manner, and you will find that there is a clear cut link, और एक once you have understood that link, ये बहुत आसान। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्लेटो और एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट ग्रीस, फ्रॉम वेयर दिस स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्टेड। तो नेचुरली अगर आपको कोई भी डिसिप्लिन पढ़ना है, सो हु गेव द इनिशियल आइडियाज, हाउ दैट आइडिया इवॉल्व, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट? उसके बाद हम बीच में एक आ जाता है मैकियावेली। मैकियावेली की क्या खासियत है? ये पहले थे जिन्होंने कहा कि रिलीजन और स्टेट को अलग होना चाहिए। पहले जब राजा था, उस समय राजा किसकी मर्जी से चलता था? इन इंडिया इट वॉज द प्रिस्ट, बाहर में इट वॉज द पोप। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट इस्लामिक वर्ल्ड, तो वहां पे खलीफा ही था ना, ऑटोमन एम्पायर का, टर्की में, प्रेजेंट डे टर्की में, विच वॉज कंट्रोलिंग ऑल द ओवर द इस्लामिक वर्ल्ड। इसके आगे क्या हुआ? जब आप हॉब्स, लॉक और मिल को पढ़ो, तो यहां से स्टेट का फॉर्मेशन और मॉडर्न डे स्टेट का आइडिया स्टार्ट होता है। हॉब्स के साथ जो लॉक और मिल तक पहुंचते पहुंचते ये लोग बताने लगते हैं कि सिर्फ स्टेट ही काफी नहीं है, सिटीजन्स के पास राइट्स होने चाहिए, प्रॉपर्टी के राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। जेएस मिल ने बोला फीमेल को भी बराबर वोटिंग का अधिकार होना चाहिए।
तो आप इन तीनों में देखोगे इस आइडिया, यहाँ पे व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट राइट्स, फ्रीडम्स, ओके। लेकिन जब बहुत ज्यादा राइट्स हो जाता है, जब बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है, तो क्या होता है? इट लीड्स टू इनइक्वालिटी। तो व्हेन देयर इज इनइक्वालिटी देन कम्स कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने क्या कहा? ये इनके आइडियाज नहीं चलेंगे, हमें क्या है? रेवोल्यूशन लाना है, so that we have to make a more equal, more egalitarian society। तो वो बराबरी की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। मार्क्स के बाद ग्रामसी आते हैं, जो कहते हैं कि मार्क्स ने जो कहा वो तो सही है, बट रेवोल्यूशन, मार्क्स वाला रेवोल्यूशन ऐसे नहीं, दूसरे तरीके। और ये जो हना एरेंट है, शी इज द न्यूएस्ट वन। इनका क्या कहना था? शी हैड सफर्ड इन द हैंड्स ऑफ नाजी रेजिम, जो हिटलर की। तो अगेन इनका फोकस जो है ना, वो डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर ज्यादा है, ठीक है। सो इस तरीके से यू कैन सी दैट देयर इज अ सिंपल फ्लो। और आप पढ़ोगे ना इन सबको, तो यही आइडियाज एक दूसरे के साथ, कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज। हॉब्स कहते हैं स्टेट को सारा पावर होना चाहिए, लॉक कहता है स्टेट को कम पावर होना चाहिए, सिटीजन के राइट्स इंपॉर्टेंट है। उससे आगे जेस मिल आ जाते हैं, कहते हैं फ्रीडम ऑफ। तो कुल मिलाकर यही एवोल्यूशन है। ये हो गया पहला पार्ट। अब अगली चीज आ जाती है विच यू टर्म अबाउट आइडियोलॉजीज। सो आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी मीन्स द वे यू लुक एट द वर्ल्ड, दुनिया को आप देखते कैसे। फॉर एग्जाम्पल, वन वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड कैन बी that everyone should be free, जिसे जो करना है that person should be free to do anything। when you look at France, वहां पे क्या है कि आप किसी के रिलीजन को भी गाली दे लो, कोई टेंशन नहीं, वो भी एक तरीका है। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन यू लुक एट चाइना, चाइना क्या कहता है? चाइना स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल, और चाइना कहता है नो, फार मोर इंपॉर्टेंट इज इक्वलिटी। तो यहीं से आ जाता है रोल आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी में किस तरह की आप आइडियोलॉजीज पढ़ोगे? लिबरलिज्म, सोशलिज्म, देन यू हैव गॉट मार्क्सिज्म, you have got fascism, you have got feminism। So all these ideologies they talk about a specific world view। जैसे लिबरलिज्म जो है, it talks about maximum amount of liberty। So जो ये तीन थिंकर्स हैं, ये हॉब्स तो नहीं, जब आप लॉक और मिल को कहोगे, इनसे आप लिबरलिज्म को पढ़ना स्टार्ट करोगे, और बाद में देयर विल बी सम मोर। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म, समवेयर मार्क्स के पहले भी कुछ सोशलिस्ट थे, मार्क्स ने भी अपना आइडिया दिया, और मार्क्स के बाद के भी कुछ थिंकर्स थे। जो मार्क्सिज्म है ये मार्क्स का ही दिया हुआ है, इसके अलावा देयर इज ग्रामसी। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फासिज्म, इसमें अगेन हना अरेंट विल बी एज अ क्रिटिक। एंड फेमिनिज्म मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन एंड विमेन राइट्स, empowering women। तो अगेन यू विल टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम J.S. मिल, एज आई सेड कि इन्होंने विमेन की राइट्स की। तो ये दोनों सेपरेटेड नहीं है। वंस यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर आइडियाज, यू कैन वेरी कंफर्टेबली अंडरस्टैंड द बेसिक्स, और बाद में उसी बेसिक के ऊपर एड ऑन, ठीक है। थर्ड सेगमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट 1A, क्योंकि सबसे ज्यादा एलियन यही पोर्शन। उसमें क्या आता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थियरीज। थियरीज क्या है? देयर आर सम आइडियल थिंग्स, कि फॉर एग्जाम्पल इक्वलिटी, व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्वलिटी देयर शुड, टाइप ऑफ जस्टिस, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ पावर। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी put in a certain question in front of you and I want you to answer this, okay? ठीक है हर्षवर्धन, जस्ट थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, बिकॉज देयर आर अदर स्टूडेंट्स, आई विल डेफिनेटली आंसर दिस, ठीक है ना? थोड़ा सा टाइम दे दो। तो
फॉर एग्जाम्पल यू आर अवेयर कि इंडिया में एक रिजर्वेशन का सिस्टम है। रिजर्वेशन का सिस्टम क्या किस लिए है? सो दैट कि द पीपल जो कि हिस्टोरिकली हु हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड दे कैन बी ब्रॉट एट अ लेवल प्लेटफॉर्म. So this is one way of making unequals equal. Then there can be another one who will say कि इन्हें what is the problem of these people? That they do not have required knowledge. So rather than creating a different benchmark for them, why don't you provide them with additional facilities so that कि वो पढ़ लिख करके इस लायक बन जाएं कि वो बराबरी में compete करें. That can be another type of equality. Another type can be, you can say कि no, why he should get something extra for what my forefathers had done. गलती मेरी नहीं है ना. अगर discrimination किसी, if someone has been discriminated against, that was the fault of my forefathers. My forefathers, they discriminated against his or her forefathers. So why should I suffer for the crimes of my forefathers? Simply exam लो, जिसके जैसे मार्क्स वैसे उसे. ये भी एक इक्वलिटी का तरीका है, राइट? So this is what we go for studying here, that what are the ideal types of equality or justice, rights, democracy. और देखो यहां पे फिर से जब हम बात करने लगे ना, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट दोनों यहां पे आता है. दिस इज हाउ द क्लासेस विल रन. लेट मी बी वेरी क्लियर कि पहले थिंकर्स पढ़ेंगे फिर आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि वंस यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी, कार्ल मार्क्स और मार्क्सिज्म दे विल टॉक अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वलिटी. मार्क्स क्या कहता है? कहता है कि मेहनत चाहे कोई कितना भी करे ना, हर किसी का आउटकम बराबर होना चाहिए, हर किसी को बराबर दो. या फिर इन सिंपल टर्म्स, मेहनत कोई कैसे भी करे, हर किसी को जरूरत के मुताबिक बराबर. अगर हर इंसान को 3 रोटी मिलनी चाहिए, जिसके फैमिली के 5 मेंबर्स हैं उसे 15 रोटी दो, जिसके 2 मेंबर्स हैं उसे 6 रोटी दो. नो मैटर व्हाट इज द एफर्ट वन है. लिबरलिज्म वाले क्या कहेंगे? बोलेंगे नहीं ये सब नहीं चलेगा, हर किसी को बस बराबर राइट्स दे दो, जिसकी जैसे whatever type of effort one puts in वैसा उसे आउटकम मिलेगा. उसी तरीके से जस्टिस का आइडिया आता है, राइट्स का आइडिया आता है, डेमोक्रेसी का आइडिया आता है. तो ये दोनों लिंक होकर के हमें पढ़ना होता है थियरी से, और बहुत सिंपली. एंड यू सी थिंकर्स विल सिंपली ओवरलैप. जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू मेमोराइज स्कॉलर डिफरेंट कंसेप्ट लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, पावर. ओके हर्षवर्धन, इसी क्वेश्चन को अभी लेट मी टेक. फॉर एग्जाम्पल सपोज, एंड फॉर द स्टूडेंट्स who are not there for, who have not yet started PSIR, ये थोड़ा सा मैं साइड जा रहा हूं, बट स्टिल आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. यू सी, अगर आप पूरे सिलेबस को देखोगे रिगार्डिंग हर्षवर्धन, आई एम सेइंग, you will find कि all these things are simply related, so you need not put in new thinkers and new ideas. जब आप बात कर रहे हो इक्वालिटी की, आप इक्वालिटी में क्या रॉल्स को नहीं पढ़ रहे थे? बिकॉज रॉल्स हैज गिवन इट्स ओन. जब आप रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल की बात कर रहे हो, तो वो भी तो वन वे ऑफ इक्वालिटी है ना. या फिर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डॉर्किन, तो वही रॉल्स, वही डॉर्किन आप जस्टिस में भी पढ़ लोगे, आप इक्वालिटी में भी. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. आई नीड नॉट पुट इन 5 different thinkers for equality and 5 different thinkers for justice and 5 different thinkers for rights. अगर आपको राइट्स के लिए पढ़ना है, मैं नए थिंकर्स क्यों लाऊं? Why don't I put in the ideas of J.S. Mill? J.S. Mill तो एक थिंकर हो गया ना. J.S. Mill को मैं लिबरलिज्म में भी यूज करूंगा, मैं राइट्स में भी यूज करूंगा. तो always ensure you have a limited set of thinkers
with their ideas and develop the art that how the same thinker can be used in three different type of questions. Important ये है, दिक्कत क्या, बिकॉज यू सी बात ऐसी नहीं है ना कि जो नोट्स में दिए गए थिंकर्स हैं हमें सिर्फ वही याद करना. दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच. एंड नॉर्मली व्हाट टीचर्स डू is कि just in order to show off their knowledge they will put in three different thinkers here, three different thinkers here, three different thinkers here. हेडेक आपका हो गया कि 9 नए थिंकर्स हैं, उन थिंकर्स के स्टेटमेंट्स हैं, याद कैसे? सेम सेट ऑफ थिंकर्स कैन बी यूज ओवर हियर, ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप बात इक्वालिटी की कर रहे हो, इक्वालिटी में आप क्यों नहीं आप मार्क्सिज्म या सोशलिज्म वाले ही थिंकर्स उठाओगे? उनको क्रिटिसाइज करके आप लिबरलिज्म वाले थिंकर उठाओगे? क्योंकि आप व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म में जब आप न्यू लिबरल्स की बात करते हो उनकी आइडियाज अलग हो जाते हैं. तो अगर आपको इक्वालिटी में क्रिटिसाइज करना है मार्क्सिस्ट को या सोशलिस्ट को, यू सिंपली यूज न्यू लिबरल. सेम थिंकर्स नए नहीं लाने हैं, ये पहली चीज है. एंड सेकेंड इज की हाउ टू मेमोराइज. So you see, there are two things. One thing is कि mugging up. तो mug up करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, just write it down, paste it on the wall. So that चाहे आप कपड़े बदल रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपकी नजर जाती रहेगी, उतनी बार जाएगी ना आपको नेचुरली याद हो. That is first. Next is get some questions and try to write answers and try to ensure कि मुझे अपने आंसर 8 या 10 मिनट में नहीं लिखना है, मैं आधे घंटे लूंगा. बट आई विल ट्राई टू रिकॉल कि मैंने कौन से थिंकर याद किए थे, व्हाट आर देयर आइडियाज. टाइम बाउंड अभी नहीं हो, बिकॉज क्या होता है अगर शुरुआत से इफ यू आर टाइम बाउंड, एंड remember this suggestion is also for GS, कि if from the very beginning if you are focused on time, initially you do not have sufficient knowledge, you cannot recall things quickly because you are simultaneously you are forgetting things. As a result, what happens is that you have to write answers in a time bound manner, you will write poor answers. Going forward, the same will become your habit. You will develop a habit of writing poor answers. So later on, even if you are writing answers within time, but you will be writing poor answers and you will be getting poor marks. So what you need to do initially, that I will take all the time available in the world. I will take one day, I will take 2 hours, 3 hours, 4 hours, but I will write the best answer. आगे क्या होगा? इनिशियली सिंस यू आर अनेबल टू रिकॉल द थिंकर्स, याद करने में टाइम लग रहा है. व्हाट इज द क्वेश्चन को समझने में टाइम लग रहा है. फॉर स्ट्रक्चरिंग द क्वेश्चन यू आर टेकिंग टाइम. So because of all this, the time taken will be too much. But after practice 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, now what is happening? You can understand the question demand quickly because of practice. You can structure the answer quickly. Why? Again, because of. Then, since you have revised it multiple times, you can recall the thinkers quickly. So because of this, now you will be able to write an answer quickly. So slowly you will see that the time taken in writing the answer, it is slowly getting reduced. आप क्या होगा, आप आंसर टाइम पर लिख पाओ. सो वो बेवकूफी नहीं करनी. और हरेक के लिए नए थिंकर्स, हरेक के लिए नए थिंकर्स, वो पागलपन, जस्ट डोंट डू दैट मैडनेस. नेवर, बिकॉज अननेसेसरली व्हाट विल हैपन, फिर क्या होगा ना, जब बहुत सारे थिंकर हो जाते हैं ना, सोशलिज्म का थिंकर आप फासिज्म में डालोगे, फेमिनिज्म का थिंकर आप लिबरलिज्म में डालोगे, ये भी दिक्कत होती है ना, बिकॉज द सब्जेक्ट इज न्यू टू यू. सो स्टिक विथ अ लिमिटेड नंबर ऑफ थिंकर्स
and try to be creative कि how I can use these thinkers in different other ideas. और ये मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा अबाउट राइटिंग आंसर्स की, ठीक है, आंसर लिखते समय क्या करना होता है बेसिकली इन एनी ऑफ द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स. So I hope regarding paper 1A, I have made it sufficiently clear. Now I'll be coming to paper 1B. How to balance contemporary scholar and in book scholar in answer. So देखो, कंटेम्पररी स्कॉलर्स और बुक स्कॉलर्स, पहली बात जो आपको दिमाग में अपने रखना है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इज दैट यू हैव गॉट 2 पेज 3 पेज मैक्सिमम 4 पेज. 4 पन्ने में कितने स्कॉलर आप लेते बताओ? हाउ मेनी स्कॉलर्स यू कैन राइट? बिकॉज यू ऑल्सो क्वेश्चन itself will have 2 parts, 3 parts, 4 parts. You also have to address each part of the question. You have to explain the idea. If you are writing a thinker, you also have to give counter arguments. How? So contemporary and book, वो पागलपन, again I am saying this madness. Why? Because when you are talking about, just a second, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है ना. सपोज फॉर एग्जाम्पल you are talking about paper 1A, that is political theory, ठीक है. So here naturally the thinkers, they will be book scholars, they will be book scholars. The maximum you can use the contemporary things is talking about in the conclusion where you are talking about present relevance. तो यहां कंटेम्पररी स्कॉलर आप लाओगे कहां से? डू यू हैव? बिकॉज प्लेटो के बारे में जितना क्रिटिसिज्म होना था, एरिस्टोटल के बारे में जितना क्रिटिसिज्म होना था, वो हो चुका है. आप यू आर नॉट पुटिंग इन अ रिसर्च पेपर so that you have to criticize Plato or Aristotle or Machiavelli from a new dimension. तो यहां तो कंटेम्पररी थिंकर का स्कोप खत्म. कंटेम्पररी थिंकर का स्कोप कहां पे बनता है? बाकी हर जगह. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आईजीपी, आईजीपी में मोस्ट ऑफ द थिंकर्स दैट यू विल फाइंड, दे विल बी कंटेम्पररी ओनली. एंड पेपर 2 व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आईआर, थियरी ऑफ आईआर, तो देखो आईआर एज ए डिसिप्लिन वो तो खुद 1950 के बाद आया है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एंड प्राइमरली ये 1970 1980 के बाद आया है. तो जितने भी आप थिंकर्स यहां पे देख रहे हो, मोस्ट ऑफ देम विल बी कंटेम्पररी वंस ओनली. मियर शाइमर को आप पढ़ते हो ना, ऑफेंसिव रियलिज्म, ही इज अलाइव. अमिताभ आचार्य को पढ़ते हो, ह्यूमन सिक्योरिटी, ही इज अलाइव. सो यहां आई मीन यू सी, बात क्या है ना कि perhaps this has not been explained sufficiently to you. इसलिए किसी ने कहा कि कंटेम्पररी को डालना है, बुक वाले को डालना है, बट थिंक अबाउट इट योरसेल्फ. कंटेम्पररी वाले का रोल अलग जगह पे है, बुक वाले का रोल अलग जगह पे है. And in paper 2, whichever book thinkers are there, they are all contemporary thinkers. तो ये unnecessary आपके दिमाग में confusion है. You see, if you are in Delhi and if you are not giving prelims this year, you can come to the institute, we can sit together and we can discuss. वो ज्यादा सही है. उसके लिए कोई, I mean, do not be hesitant. I have said to my students multiple times that be selfish and be shameless. जो सवाल आ रहा है कुछ भी पूछ डालो, no issue. At the worst, it can be a wrong question or it can be a bad question. पिटाई थोड़े ना मिल रही.
Okay, and whatever I have said to the students who have not started preparing for PSIR yet, आप भूल जाओ इस चीज, क्योंकि अननेसेसरली ये सब दिमाग में डालोगे, नहीं डालोगे बुक थिंकर, कंटेम्पररी थिंकर, यू विल जस्ट मडल योर प्रिपरेशन. बी वेरी क्लियर, और कहीं पे किसी भी तरह का कंफ्यूजन आ रहा है ना, दिस इंस्टीट्यूट इज ओपन. फोन कर लो इंस्टीट्यूट को, पूछ लो सर अवेलेबल हैं क्या, जस्ट कम. और हाँ, अगर आंसर राइटिंग के लिए आते हो ना, प्लीज ब्रिंग एटलीस्ट 2 or 3 आंसर्स दैट यू हैव रिटन. क्योंकि थियरी में ये करना है, ये नहीं करना, दैट इज फार मोर इजियर, बट व्हेन दैट थियरी गेट्स इंप्लीमेंटेड, then you start looking at ki what are the mistakes that are being done. Okay, so I hope ki Harshvardhan, your answers have been sufficiently ठीक है. Okay, then now I'll go to IGP. और देखो कोई भी डाउट है पुट इन हियर यार, अननेसेसरली वो टेंशन लेने की. हु इज देयर? अभिषेक, मोतीलाल, यू कैन जस्ट पुट इन द क्वेश्चंस. इसी तरह का बुक्स फॉर PSIR, रुको बुक वाले पर मैं आता हूं, एंड दैट इज अनदर मैडनेस. पहले मुझे थोड़ा सा ये सिलेबस एक्सप्लेन कर लेने दो, ठीक है? आई विल बी कमिंग, एक एक करके मैं सब पे आता हूं और साफ साफ बताऊंगा, वो नहीं कि ये कर लो वो कर लो. बिकॉज देखो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, देखो ये जो पूरे का पूरा देख रहे हो, दिस एनीवे यू रीड इन योर GS2 मेकिंग ऑफ, इसमें जो है ना डिफरेंट सोशल एंड ये पर्सपेक्टिव्स, दिस इज समथिंग यू डू नॉट रीड. ये पर्सपेक्टिव्स पढ़े हुए, ये आपको अलग से पढ़ना होता है. ये सारे का सारा आपको ऑलरेडी यू स्टडी इन GS2, ठीक है ना? लेकिन what we have to add over here are views of experts, committees, commissions, Supreme Court judgments. ये सब यहाँ पे एडिशनल फोकस. सो रिगार्डिंग दिस यू कैन गो फॉर अ मेजर सेगमेंट, you can go for Lakshmikant, but it will be Lakshmikant plus plus, because Lakshmikant is good for basic, but ये कुछ additional information that you need to, ठीक है ना? और ये जो आप नीचे में देख रहे हो ना, कमिटीज, कमीशंस और SC जजमेंट्स, ये आप GS2 में भी बाकायदा यूज करो, यूज देम. Because that is the reason many of the PSI students, they do not get good marks in GS2, because those who are not PSI students, they are aware about it and they simply write it and they get good marks. But the problem with PSI students is that they are in confusion. लिखूं ना लिखूं, ये ऑप्शनल वाला एरिया तो नहीं मेरा एक्सपोज हो रहा है, वो सब भूल जाओ. Because now the focus is more on content, how quality content you are writing. Because the copy ahead of you, if they are quoting multiple Supreme Court judgments, multiple committees and commissions recommendations, how can you not put it? ये पूरा एग्जाम रिलेटिव है. How good or how bad someone else has written compared to you. So views of experts को छोड़ करके सारे का सारा कॉमन है. ओके, लेकिन हाँ यहाँ पे इट इज लक्ष्मीकांत प्लस. उसके अलावा यहाँ पे देखो, बिकॉज देखो ग्रास रूट डेमोक्रेसी वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है. और ये वाला जो पोर्शन है ना, मैं बोल रहा हूं प्लीज इसे याद रख. इससे एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है. यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन. द इशू इज दैट you do not prepare this well. As a result, you leave. What you need to do for this is just mug up Lakshmi.
Lakshmikant, you have mugged up, and then supplement that with again views of experts, committees, commissions, data, facts. If you are talking about finance commission, okay, then 14th में क्या था, 15th में क्या था, how it played a role. Or if you are talking about NCSC, NCST, NCBC, उसके regarding, okay, what are their performance, what are the limitations, supplement that with data, whatever is written in the Lakshmikant. इसको अच्छे से तैयार कर लो, because just go through the questions. Every year you will find a question on this, but problem is that आपके नोट्स में सही से नहीं लिखाया गया है. आपका फोकस क्या होता है ना, यू गेट ब्लिंकड, वो जो घोड़े के साइड में कैसे लगा दिया जाए, नोट्स है, नोट्स को पढ़ना है, नोट्स के अलावा कुछ नहीं दे. दैट इज अ वेरी रॉन्ग है, because most of the times your notes are lacking in multiple areas. तो कोई भी टॉपिक हो जाए ना, एक बार गो बैक टू द यूपीएससी सिलेबस, उसके बाद सी की आर ऑल द सब पॉइंट्स ऑफ द सिलेबस हैव दे बीन कवर्ड, देन गो टू द PYQ and see ki whatever notes have I got, if there is a PYQ from this particular segment, am I able to answer this from whatever content I have? If you are not, then it is your responsibility to supplement that content. Whether you ask for that from the teacher, or you buy something from the market, or you read it out from the internet through videos or through any article or something, that becomes your responsibility. Okay? Next is फेडरलिज्म, प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हाँ, ये देखो, ये जो है ना, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी और पार्टी सिस्टम, इससे मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, एंड दिस इज समथिंग जो आपको अलग से पढ़ना. एंड इफ यू आर समवन हु टेक्स इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, बिलीव मी, यू विल एंजॉय इट अ लॉट, बहुत ज्यादा यू विल. From Congress to BJP to BSP to Shiv Sena, everything we have to study over here. Even we have to study why Congress declined, how BJP is rising, what are the factors. Because syllabus खुद देखो ना, national and regional political parties, ideological and social basis of parties. So when you are reading about BJP, naturally you will read about RSS. एक बुक बहुत पहले आई हुई थी, ब्रदरहुड इन सैफ्रन, वो सारी चीजें. सो इफ यू टेक इंटरेस्ट इन नेशनल पॉलिटिक्स, यू विल जस्ट एंजॉय, पर बहुत आसानी से. ठीक है, अब आते हैं पेपर 2. तो देखो, अगेन one thing is, we have read about our national politics, we have read about different type of democracies, rights, justice. But when we look at it, democracy is in India, democracy is in USA, democracy is in UK. But all three are different types. Why? How they are different? That is something we read in comparative politics. Okay? Then how politics is different. When you look at USA or France or UK or India, political setup, political party system is different. That is something we read over here. उसके आगे देखो, if we have to read international relations, again we need to know about the theories, what are the basic ideas. वो हम कहां से पढ़ते हैं? आप जो देख रहे हो अप्रोचेस. ठीक है, सो जस्ट लाइक हमने वहां पे आइडियोलॉजीज पढ़ी थी ना, लिबरलिज्म, फासिज्म, फेमिनिज्म, उसी तरीके से इन IR ऑल्सो देयर आर आइडियोलॉजीज, बट दोज आइडियोलॉजीज आर रेड इन टर्म्स ऑफ अप्रोचेस. आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट. मार्क्सिस्ट सिम वहां पे भी है सीन मार्क्सिज्म, फंक्शनलिस्ट, सिस्टम्स थियरी, इन्हीं में लिबरल अप्रोच. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम आइडियाज लाइक नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, पावर. तो देखो, ये जो है ना, ये थोड़ा कोर हो जाता, और यही कोर जो है जो आगे डिक्टेट करता है. एंड व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स,
you can use ideas from here. For example, इंडिया चाइना का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन, तो उसके लिए आप अप्रोच को यूज करें। तो इस तरीके से इफ यू लिंक एवरीथिंग ना, थिंग्स आर फार मोर इजियर। और यहाँ पे देखो नॉन अलाइनमेंट हो गया, वर्ल्ड वॉर है, ये सब यूनाइटेड नेशंस है, और एनीवे यू रीड ऑल ऑफ दिस इन जी। सो यहाँ पे है कि 30 to 40% यू एनीवे रीड इन। और अगला जो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, यहां भी अपार्ट फ्रॉम द स्कोर दैट इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बाकी सब के बारे में ना अगेन यू हैव टू रीड इन जीएस। जीएस में वी रीड इट इन अ लिमिटेड मैनर, यहाँ पे वी रीड इट इन अ डिटेल्ड मैनर। मोर देन 190 नेशंस विद द यूएन, सब के बारे में नहीं पढ़ना होता है। इंडिया, हमारे सारे नेबर्स के बारे में पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर्स यूएस, चाइना, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया। उसके अलावा रीजन्स, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, आसियान, यूरोप, इसके बारे में पढ़ लिया, एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बस इतना। देखो अब मैं जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर, मैं इसके रिगार्डिंग थोड़ा हो सकता है कि मैं आप लोग को जरूरत से ज्यादा बता दे रहा हूं। आई एम एक्सेप्टिंग दिस बिकॉज मेनी ऑफ यू आर बिगिनर्स। ये देखो दिस इज पेपर 2, और हाँ इफ यू वांट दिस यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम विच इज PSIR by Chandan। ओके, सो यू कैन पिंग मी हियर। और सिर्फ यही नहीं, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है ना, यू कैन ऑलवेज अप्रोच हिम, आई विल ट्राई टू आंसर। तो देखो यहाँ पे व्हाट आई हैव डन इज दैट I have tried to simplify it. For example, this is related to paper 2A. Whatever all these portions are, you can link it to idea of globalization. If you have got the, then another subtopic is related to yes, another is related to approaches. तो यहाँ पे you can link it to challenges and solutions in bilateral relations. India and the world में क्या है? These are all some of the separate, but when you look at it, there are multiple topics that overlap actually. For example, 2A में है changing international political order, non-aligned movement, aims and achievements. When you are reading about this, simultaneously read what is in 2B, the topics like India's contribution to the non-aligned movement, different phases and current role. जो रेड में लिखा हुआ है इट इज रिलेटेड टू 2B, और जो ब्लैक में है वो 2A के साथ। तो जब आप इसे एक साथ पढ़ते हो ना, आपका सिलेबस नेचुरली वो छोटा हो जाता है, अप्रोच बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाता है, एंड इट टेक्स फार लेसर टाइम। Then when you are talking about, when you are reading evolution of international economic system, simultaneously read about India and the global south, क्योंकि issues दोनों के केस में you will find there is a clear cut overlap. When you are reading about rise of superpower, arms race and cold war, nuclear threat, link with it India and the nuclear question. रीजनलाइजेशन के साथ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर्स, और यूएन के साथ जो है इंडिया एंड द यूएन सिस्टम, रोल इन पीस कीपिंग एंड डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल. So what you do regarding paper 2 is that what the way I have suggested, आप सबसे पहले टीचर ने आपको पढ़ा दी. After that you club these topics like this. So what will happen, that one thing is that your notes they have gotten shortened, and when you start revising, नाम दो जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इंडिया, यूएसए, रशिया को दो जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड रशिया, simultaneously we can read about India, US and India, Russia. So that is another way what you can do in paper 2 so that की चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन क्या था, बुक लिस्ट का था. बुक्स फॉर और वी गो थ्रू नोट्स. मैं बता रहा हूं, बिकॉज देखो पॉइंट इज की आई वॉन्ट से एनीथिंग दैट इज कंप्लीटली ब्लैंक, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. जो क्लास में होगा वहीं पे, बिकॉज आई डू नॉट आस्क यू टू ट्रस्ट मी ब्लाइंडली. आई नेवर आस्क यू, जस्ट आई विल ट्राई एक्सप्लेन यू. You see, when you are talking about book, आप नेट पर जाओगे ना, तो जब आप पॉलिटिकल थियरी की बुक में देखोगे, उसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आ जाएगा, ओपी गौबा का आ जाएगा, राजीव भार्गवा का आ जाएगा. ठीक है. उसके अलावा पॉलिटिकल थॉट में देखोगे, देयर इज सुशीला रामास्वामी, 2 वॉल्यूम है, और सुब्रता मुखर्जी. आई नो कि लिखने में टाइम ज्यादा जा रहा है, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में यू विल गेट वी आर मेहता, राइट. फिर हिस्ट्री के केस में यू विल ग्रोवर मिलेगा एंड विपिन चंद्रा विल बी देयर. और आईजीपी के लिए पीएल फाड़िया, और एक और किताब है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, जिसमें कि आपको मिलेंगे ये प्रताप भानु मेहता और देवेश कपूर. देखो ये तो सिर्फ मैं पेपर 1 की बात कर, ठीक है ना. इसके अलावा पेपर 2 की और किताबें हैं मेरे पास, मोस्ट ऑफ देम का सॉफ्ट कॉपी है, अगर चाहोगे मैं दे दूंगा. बट डू नॉट गो द मैक्सिमम बुक. अगर मन है कि नहीं मुझे कुछ और पढ़ना है ना, तो बस इग्नू के नोट्स पढ़, थोड़ा पढ़. इनफैक्ट इसकी भी जरूरत नहीं. मैं रीजन बता रहा हूं, बिकॉज यू सी none of these books have been tailor made for the UPSC. That is the first thing. Next thing is that most of you are new, so you do not know if I have to read about Karl Marx, what is it that I should read. Because Karl Marx ने जो भी बताया है ना, उसका एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, उसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है, उसका एक सोशल डायमेंशन भी है. जो सोशल डायमेंशन है वो सोशियोलॉजी वालों की टेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन इकोनॉमिक्स वालों की टेंशन है. वी ओनली हैव टू रीड अबाउट पॉलिटिकल डायमेंशन. नतीजा क्या होगा, आप पॉलिटिकल के साथ साथ बाकी भी पढ़ लो. समय कितना गया, नेट आउटकम क्या, वही इन सब किताबों के साथ होना है. बिकॉज नन ऑफ देम आर टेलर मेड फॉर द यूपीएससी. In fact, IGNOU notes are also not made for tailor-made for UPSC. However, ये थोड़े ब्रीफ हैं, तो अगर आप ये बेवकूफी करोगे भी ना, तो 15 से 20 पन्ने 25 पन्ने में एक टॉपिक की बेवकूफी समाप्त हो जाएगी, बहुत ज्यादा समय नहीं जाएगा. बट ये किताबें 400-400 500-500 पन्ने की हैं. आपको लिखना कितना है, 2-3 मैक्सिमम 4. क्या करोगे उतना जानकर. Moreover, you are new to the discipline. How will you know कि what is relevant, what is not relevant? पता चला एक these are academic books. एक ऐसी लाइन मिल गई जो समझ में नहीं आ रहा. अब उस लाइन को समझने के लिए I am searching for the internet. उस चक्कर में क्या हुआ, आधा घंटा 1 घंटा और चला गया. Had you been doing research, पीएचडी में कोई तो कारण है ना कि 5 साल दिया जाता है. बिकॉज उनको किताबें पढ़नी है, पढ़ करके चीजों को समझना है, एंड दे हैव टू गिव अ न्यू थियरी और समथिंग न्यू आइडिया. यहाँ पे यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दैट. और जब इतना टाइम आप अपने ऑप्शनल को दे रहे हो, जीएस को टाइम कम दो.
क्या कोई पंचवर्षीय योजना तो नहीं है ना, 5 year प्लान, that in first 2 or 3 years I will go for optional, then in next 1 or 2 years I will go for GS, and in the 5th year I will write. You see, regarding UPSC, my suggestion to you is very simple. Do not count this in terms of attempts. अटेम्प्ट के चक्कर में जाओगे ना तो क्या करोगे कि 3 साल के लिए पढ़ रहे हैं, अब तक अटेम्प्ट एक भी नहीं दिया है, तो मेरा अटेम्प्ट नहीं गया. एंड यूपीएससी गिव्स 6 attempts, right, for the open category candidate. But point is, what about those 3 years that you have missed out on? So rather than focusing on attempts, focus on the years missed. Because ये जो 20s का जो होता है ना, ये आपके लाइफ के सबसे क्रिटिकल और सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स हैं. So use every month, every day of it very judiciously. यहाँ पे इतना, बिकॉज देखो लोग होते हैं, कुछ के पास पैसा ज्यादा है, कुछ के पास पैसे कम है, तो सम है क्राइसिस ऑफ मनी, राइट. बट टाइम इज समथिंग जो हमें लगता है हमारे पास बहुत ज्यादा है, बट किसी के पास ज्यादा नहीं होता. टाइम का क्राइसिस एवरीवन हैज गॉट, वेदर दे आर अंबानी और अ रोड साइड beggar. When you are focusing on all this, imagine how much time you are missing out on. एक गड़बड़ी लेकिन होती है focusing on this. There are teachers, and I am not taking it. They do not focus equitably on every portion. नतीजा क्या होता है, कहेंगे 3 क्वेश्चन 1A से फोकस करना, 3 क्वेश्चन 2B से फोकस करना, 1B और 2A जाता है. वहां पे क्या है ना, in such a scenario, please take some extra effort and supplement your notes as per the syllabus of UPSC and the PYQs that have been. लेकिन मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह का कोई गैप नहीं रहेगा, और उसके लिए तरीका है, एंड मैं बताऊंगा कि उसके लिए हम कैसे चलेंगे. ठीक है. सम टीचर से लक्ष्मीकांत इज ओनली फॉर प्रीलिम्स नॉट फॉर मेंस. किस टीचर ने ऐसा भी? उन टीचर को, अब मैं जीएस के रिगार्डिंग भी बता रहा हूं, मैंने आई हैव सेड दिस टू यू अबाउट ऑप्शनल, एंड आई एम सेइंग दिस विथ फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी. उनको जाकर के क्वेश्चन पेपर खोल करके दिखा देना कि सर बताइए ये क्वेश्चन, बिकॉज यू सी व्हाट यू से कि जीएस में करंट बेस्ड इश्यूज आते हैं. इश्यूज करंट बेस्ड आते हैं, लेकिन उसके जो बेसिक्स हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज क्वेश्चन रिलेटेड टू फेडरलिज्म. Lakshmikant has talked about specific articles, right? It will talk about specific Supreme Court judgments. Will those articles be relevant or not? Will those judgments be relevant or not? Suppose a question आ गया, क्योंकि जीएस में आता है ना, सपोज क्वेश्चन आ गया इलेक्शन कमीशन. आप अगर इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर करंट नोट्स, इन द करंट नोट्स मैक्सिमम इट विल बी कि रिसेंट में क्या हुआ, उसके पॉजिटिव्स क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या है. बट इट इज आर्टिकल 324. व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इलेक्शन कमीशन, लक्ष्मीकांत में तो पढ़ा हुआ है ना. और सपोज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जुडिशियरी, सपोज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉलेजियम, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, एवरीथिंग इज देयर इन लक्ष्मीकांत. तो यू सी, कोई भी ना एक क्लियर कट डिवीजन नहीं है कि ये इसके लिए वो उसके लिए. हाँ, पॉइंट इज कि इन प्रीलिम्स आवर अप्रोच गेट डिफर्स. Why? Because in prelims we are focusing more on facts, we are focusing more on data. But यहाँ पे क्या है, हमें सब कुछ को एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जाम्पल सपोज क्वेश्चन आरपीए से, तो एक क्वेश्चन हर बार आता है आरपीए 1951. कहाँ से पढ़ोगे आरपीए 19? रिगार्डिंग पार्लियामेंट, रिगार्डिंग जुडिशियरी, कहाँ से पढ़ोगे? And moreover, Lakshmikant already, if you have read about it in prelims, मेंस के लिए रिवाइज करते कितना टाइम लगता है. यहाँ पे हम उतना ज्यादा फैक्ट्स एंड डेटा पे नहीं,
आर्टिकल्स, व्हाट आर द पावर्स, व्हाट आर द अमेंडमेंट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, ये करना है। लेकिन हाँ, फॉर मेंस लक्ष्मीकांत इज नॉट सफिशिएंट। ये गलत है कि वो मेंस के लिए नहीं है, लेकिन बट लक्ष्मीकांत इज नॉट सफिशिएंट। You need to supplement Lakshmikant with the recent events or recent happenings. ठीक है, क्वेश्चन आता है ना पंचायत और यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज, लक्ष्मीकांत में सब कुछ अगर डिटेल में दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट में कोई जजमेंट है, अगर किसी कमिटी का रिपोर्ट है विच इज नॉट इन द लक्ष्मीकांत, सप्लीमेंट विद दैट। ओके, कोई डाउट है पूछना? It is not analytical, it is factual. Who said that Lakshmikant is factual, it is not analytical? Again, Harshvardhan, if you are in Delhi, please. You see, one thing is that what someone else has said and I have listened. You see, I do not have Lakshmikant presently. तो मैं साफ साफ आपसे नहीं बता सकता ये देखो ये देखो ये देखो। Had I known, I would have brought Lakshmikant. Rather than what someone else is saying, be objective. Go for it yourself. Because look at the emergency chapter, look at the fundamental rights chapter. Is it not analytical? Is it just talking about facts? It is giving you reasons. What are the Supreme Court? What has Supreme Court said? What are its criticisms? But yes, supplement Lakshmikant with the current happenings or whatever gaps are there in the Lakshmi. Okay? अगला क्वेश्चन क्या है? Different approach in answer for same concept in political theory paper and comparative politics paper. ये सवाल असल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो, different approach in answer for same concept in political theory paper and comparative politics. For example, समस्या क्या होती है ना कि the way you have read, you think that both are same. The fact is that both are not same. आप पॉलिटिकल थियोरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किस टॉपिक की आप बात करें? आप सिस्टम्स अप्रोच की ही बात करोगे ना, राइट? बट देन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम्स अप्रोच, उसके अलावा क्या मतलब? आई मीन जस्ट गिव मी सम एग्जांपल so that it will be far more easier for me to explain to you. क्योंकि ये बहुतों को लगता है, क्योंकि एक बार और कई बार आप लोग क्या करते हो ना, क्वेश्चन आ गया सिस्टम अप्रोच, आप ईस्टर्न को लिखना स्टार्ट कर दोगे, जबकि हो सकता है वो आईआर वाला क्वेश्चन होगा जहां पे आपको मॉर्टन कपलन को डालना हो। सो ये बहुत, दीज आर सम वेरी कॉमन मिस्टेक्स दैट यू मेक। अब हर्षवर्धन, वेन इफ यू डोंट माइंड प्लीज गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर ऑन बोर्ड। टेलीग्राम से काम नहीं चलेगा क्या? ओके, आई एम गिविंग इट 8802554892। देखो, दिस इज ऑल्सो माई व्हाट्सएप नंबर, so it will be better if you first put in a WhatsApp message, because it may be a scenario that I might be busy at that particular time. So आप पहले WhatsApp पे मैसेज कर लो, उसके बाद फिर we can talk। वो absolutely no hesitation। और देखो, लग रहा होगा कि मैं ब्लंट हूँ, फैक्ट इज आई एम, जो बात है मैं साफ आपको। And many a times what happens is that there are gaps in knowledge. I have said this in many of the videos. You won't believe, एक लड़की जिसने 4 बार मेंस लिखा, वो मेरे को बोलती है सर डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी अलग अलग है, आज तक मुझे पता नहीं। वो उसने इस बार 5वां अपना unfortunately did not get that information. So I have seen all of this first hand. तो कई बार इसीलिए ना एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस असेसमेंट, और मैं कुछ भी, वन स्टूडेंट केम, आई वॉन्ट बी टेकिंग नेम,
शी सेड कि सर आप बोलो तो मैं फाउंडेशन ज्वाइन कर लूं. She had already done foundation somewhere else, I think 2019, 2020. I said her that first bring me some of the answers that you have written, and then only I can say that whether you need to join foundation or there are some specific gaps, we can simply discuss and it will get handled. So it is all about being altruistic in approach, because you people, the fact is कि आपके पास बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है ना. यू आर न्यू टू दिस. और मैं स्टार्ट कर दूं, मैं डराना स्टार्ट कर दूं, ये ऐसे मुश्किल है, वो वैसे मुश्किल है, वो वैसे मुश्किल है. कुछ मुश्किल नहीं. इफ आई कैन अंडरस्टैंड समथिंग, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड इट इज माई गारंटी दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. अब तक बताओ कोई भी ऐसी चीज विच यू थिंक दैट आई कुड नॉट मेक यू अंडरस्टैंड, या फिर लगा कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया. थियरीज इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है, इससे कहीं आसान है. ठीक है, लगता है किससे कहानियां ज्यादा हो रही है. I have no idea regarding PSI. I am just listening from others and trying to understand about it. Okay, Abhishek. You in Delhi or somewhere else? उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में कहाँ? बहुत बड़ा है. देखो, अगर आप नोएडा वगैरह के आसपास हो तो किसी भी दिन थोड़ा सा समय निकाल करके यू कैन कम, यू कैन सिट, वी कैन डिस्कस, बिकॉज you have no idea regarding PSI. So I hope कि whatever I explained in the very beginning, you could understand that. और देखो यार, यूपी से हो तो बहुत सारा जो आईजीपी का जो पॉलिटिक्स है वो हकीकत में आपके स्टेट के अराउंड ही घूमता है. 1960s 1970s की जब आप बात करते हो, राइज ऑफ एसपी, लेटर ऑन राइज ऑफ बीएसपी, जिसे सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्च बोला योगेंद्र यादव ने, पहले वाले को फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्च बोला. तो वो पॉलिटिकल साइंस में तो आपको दिक्कत होंगी, बट देन अगेन इट इज योर कॉल. मैं बस कह रहा हूं इसलिए कुछ मत करना. मैं जो भी कहता हूं उसको खुद के ऊपर एसेस करना. लखीमपुर खीरी, अच्छा खैर ज्यादा दूर तो वैसे है नहीं, बट स्टिल देखो अभी गर्मी वैसे बहुत ज्यादा है तो अभी मैं आने को वैसे भी नहीं कहूंगा. ठीक है यार, आप लोग से बात के चक्कर में ना चीजें भी इधर उधर हो जा रही हैं. अगला, व्हाट इज इट दैट वी हैव टू डिस्कस? हाँ, लेंथी एंड डायनेमिक. तो यू सी पीएसआईआर के रिगार्डिंग एक और कंफ्यूजन रहता है, दैट इट इज टू लेंथी एंड इट इज डायनेमिक. Regarding too lengthy, I have already explained that how things are totally intertwined with the GS. And regarding dynamic, you see, I have got question paper. और देखो question paper 2023, ये 2022 का है. 2023 का पेपर 1, just look at it. एक मिनट. हाँ, तो अभिषेक, आई होप कि यू हैव गॉट सम आइडिया अबाउट जीएस लक्ष्मीकांत, हाउ टू कवर कंटेम्पररी आर्टिकल्स एज नॉट ऑल एक्सपर्ट्स राइट इन हिंदू एक्सप्रेस ORF. I'll come to that. Just थोड़ा सा. So you see, section B, imprint of British Constitution on Indian Constitution. You read about it in paper 2, GS paper 2. ये तो नहीं. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, अगेन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में सत्याग्रह के बारे में नेशनल बोला था ना. देखो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस. इट इज a 10 marker question. If not from Lakshmikant, from where you will read about it? But what we have to do, whatever we have read in the Lakshmikant, add it up with some data, facts, challenges. वैसे challenges, limitations भी लक्ष्मीकांत में दिए हुए. ओके, तो अगर लक्ष्मीकांत का भी आंसर लिख दोगे ना
इट इज माई गारंटी यू विल गेट मिनिमम 5 out of 10, 50% मार्क्स मिल ही जाने। ओके, देन 74th अमेंडमेंट अगेन रिलेटेड टू GS2, नीति आयोग। ये अगला मेरा सजेशन है दैट इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू फेडरलिज्म, इंटरस्टेट काउंसिल, नीति आयोग, जोनल काउंसिल, नेक्स्ट इज GST काउंसिल, इन सब का भी नोट्स, ठीक है ना, बिकॉज दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। Then we lost in Indian Constitution is cornerstone of a nation. Question on federalism, देखो most of them are related to GS2। बस यहां पे आकर के ना देखो, जैसे अभिषेक, look at this question in Hindi, in English. The rise of caste politics is to be attributed to both regional aspiration and electoral manifestation comment. So you must have seen this in UP. The question simply is why caste politics emerged? If there is a party of Jats, RLD, if there is a party of OBCs, mainly Yadavs, that is SP, or a BSP, which is related to Jatavs. So the question is asking, it has got two factors, regional aspirations and electoral manifestation. Electoral manifestation मतलब I am in majority, so I can dictate terms. Something what we see in West UP, Haryana, कैसे जाट्स they dominate the politics. Next is regional aspiration. तो क्योंकि they want कि my area is backward, I want it developed. Something what you see कि JMM ने झारखंड को क्यों बनाया, TRS ने तेलंगाना के लिए क्यों एजिटेट, या फिर डिमांड फॉर मराठी रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र। यही लिखना है, जस्ट एड विथ ट्रूथ, बात खत्म हो। यही है PSIR। नेक्स्ट इज 1989 टू 1999 कैसे पार्टी सिस्टम बदला। सो आप यहां से देखोगे ना, VP सिंह से लेकर के, चंद्रशेखर से लेकर के, नरसिम्हा राव से लेकर के, फिर कौन आए थे, देवगौड़ा से लेकर के, गुजराल से लेकर, हाउ पॉलिटिक्स चेंज। एंड हियर इट इज दैट, अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट, ये अगेन जुडिशरी का रिलेटेड क्वेश्चन है, यू कैन हैंडल दिस विथ योर GS। तो मेरा ये कहना है कि दीज आर नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट कि मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आपने जो के पास जो नोट्स है ना, आपको फाउंडेशन में असल में एक्सप्लेन चीजें नहीं की जाती, बस लिखो 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 लिखो, समझोगे तब, और ये चीजों को वैसे ही मिस कर दिया। नेक्स्ट इज, अब मैं आता हूं पेपर 2 पर। इसमें मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे ये पेपर डायनेमिक नहीं है। देखो, मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी, इसमें डायनेमिक क्या है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रीजंस फॉर लैक ऑफ रीजनलिज्म इन साउथ एशिया, साउथ एशिया एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड क्यों नहीं, इसमें डायनेमिक क्या है। जो 1990s में रीजन था वो 2000s में रीजन है, वो 2010 में रीजन है, एंड दैट इज आल्सो द रीजन इन 2024। देन ये कोविड वाला, इसे इग्नोर कर। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंसर्जेंसी कंटिन्यू टू रिमेन अ मेजर इंपेडिमेंट इन साउथ एशिया। क्या क्या है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कहां कहां हो रहा है, एंड इंसर्जेंसी, टेररिज्म तो हम देख रखे हैं, चाहे इधर से चाइना सपोर्ट कर दे हमारे नॉर्थ ईस्ट के में, या फिर पाकिस्तान सपोर्ट कर दे, पाकिस्तान में TTP इज देयर। What India has taken to articulate its interest on global south in international politics, ये recent की चीज। नेक्स्ट इज आर्म्स ट्रेड, इकोनॉमिक टाइज एंड कॉन्ग्रुएंट जियोपॉलिटिक्स। ये देखो, ये है इंडिया रशिया रिलेशन। तो व्हेन यू रीड IR, सबसे पहले वी अगेन रीड द बेसिक्स। सो जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना, इट इज नॉट GS,
प्रॉब्लम है कि आप लोग जीएस को ना आईआर, सॉरी, इंडिया एंड द वर्ल्ड को आईआर समझ। दिस इज अ 20 मार्कर, मीन्स यू हैव टू राइट 4 पेजेस. So we will discuss historically how India-Russia relations has evolved. और लास्ट का एक पन्ना में बस आएगा कि अभी हाल फिलहाल में हाउ दिस. So again 70% of your answer is going to be static. Last 30% will be recent. ये importance of India's role in UN peacekeeping, again static question है, क्योंकि पीस कीपिंग का रोल अब 2010 की बात करो 2015 2020 गोइंग टू रिमेन सेम. क्वाड परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग टू विथस्टैंड डोमिनेशन ऑफ चाइना. क्वाड एक ऐसा टॉपिक है हर कोई पढ़ता है. इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल बिलीफ एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच. अगेन स्टैटिक, बिकॉज न्यूक्लियर पॉलिसी तो चेंज हुआ नहीं. तो व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वर द बेसिस, हाउ दैट कैन चेंज. तो ये क्वेश्चन 2010 में भी आता, यही आंसर होता, 2015 में भी यही आंसर रहता, 2020 में भी यही आंसर रहता. और ये सारे मैंने डिस्कस कर रखे हैं यूट्यूब पर अवेलेबल. मेंस एक प्री एग्जाम के बाद ना, मेंस के पहले आई शैल बी डिस्कसिंग वंस अगेन. व्हाट स्टेप्स हैज इंडिया टेकन इन अफगानिस्तान. आपको नहीं पता है क्या? Because anyway you read this in GS regarding Quad, you read in GS. What are the challenges to India-Iran relations? You read in GS. External determinants of foreign policy of a state, static question. Significance of West Asia Quad, I2U2. GS में आप वैसे भी पढ़ोगे. Major drivers of India's interest in Africa. ये भी static. So I take this full, I say this with full responsibility कि PSIR में हार्डली 20% डायनेमिक है, रेस्ट 80% स्टैटिक, जो कि एनीवे आप नोट्स में आपके रहेगा ही रहेगा. और आईआर में वैसे भी फ्रिक्वेंटली अपडेट्स एंड वगैरह. सो पेपर 2 के रिगार्डिंग, पेपर 1 के रिगार्डिंग भी नहीं, पेपर 2 के रिगार्डिंग टू जस्ट डोंट फॉलो. ठीक है. क्वेश्चन आगे क्या रहा है? कंटेंट. हाँ, तो अभिषेक, सिंस यू हैव आइडिया ऑफ पॉलिटी ऑफ इंडिया, तो जो पहला वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा था फेडरलिज्म एंड वगैरह वगैरह, आई होप यू वुड बी कंफर्टेबल विद दैट. एक काम करना, पीएसआईआर के ना पिछले 3 साल 4 साल के पेपर निकाल लेना, पेपर 1 और पेपर 2 भी निकाल लेना, एंड जस्ट गो थ्रू दोज क्वेश्चंस. एंड इफ यू थिंक कि थोड़ा बहुत भी यू कैन हैंडल दैट, हो गया. बिकॉज थोड़ा बहुत इफ यू थिंक यू कैन हैंडल, जब क्लास में चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी, नेचुरली यू विल अंडरस्टैंड इट इवन बेटर. लेकिन हाँ, ऑप्शनल चूज करने में कभी भी जल्दीबाजी नहीं. टेक योर टाइम. 2 ऑप्शनल अगर हैं या 3 ऑप्शनल शॉर्ट लिस्ट करो, उनके PYQs देखो, लुक एट द सिलेबस and the subject which you think that you like the most, you have the better understanding of. Because whenever anyone comes, everyone thinks कि first attempt में हो जाएगा, but that is not the reality. Okay? And even if most of those who get selected in first attempt, वो वैसे भी दोबारा देते हैं for better service. So anyway, you have to stick with that for 2 years or 3 years. So that is why choose your optional very carefully. Sir, can we write answer in bullet form in some of the topics like IGP, India's foreign policy, Motilal? देखो, एक मिनट. हाँ, मैं एक एक करके कंटेम्प्ररी आर्टिकल्स. देखो, सबसे पहले आई विल गो फॉर हर्षवर्धन सांस. How to include cover contemporary articles as not all experts write in Hindu Express ORL. You see, Harshvardhan, what I can think, someone has feed this in your brain that you need to know about a lot of scholars.
point is that where you will put those scholars. You have got only 3 pages. The thing is that on every issue, just know about 2 scholars and their views. Nothing more is needed. Whether I write about Talmiz Ahmad and you write about Tanvi Madan, what is the problem? It is just ki whatever you are writing, the opinion of expert must be in that context. It is answers in IR is not about only about collection of views of scholars. होता क्या है? First we put a thesis, an idea, then we supplement that either with data or with the views of scholars. That is how answers are written. If we see that China is a threat or China is a challenge to India in Indian Ocean, how to supplement that? We can talk about Chinese overtures in the region, how China has got a port at Djibouti. There are frequently Chinese ships are coming. Then at the same time, we can add, supplement that with views of Vijay Gokhale. बात खत्म हो गई ना? Why do you need? Because if you are talking about Hindu Express ORF, why do you need to know more? Because PSIR ही अकेला नहीं है ना, GS भी तो आपको पढ़ना है. हर इशू पर 2 स्कॉलर्स मोर देन इनफ. पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला, बात खत्म. उससे ज्यादा यू डू नॉट नीड इट. प्लीज अंडरस्टैंड. बस क्योंकि देखो, स्कॉलर अगर आप कलेक्ट करोगे, कल के डेट में रिवीजन के लिए वो सारे स्कॉलर याद रहने चाहिए, साइमल्टेनियसली उनके व्यूज याद रहने चाहिए. पता चला इसका व्यू उसमें लिख रहे हो, संजय जोशी का व्यू लिख रहे हो किसमें, सी राजा मोहन में, और सी राजा मोहन का व्यू लिख दे रहे हो तन्वी मदानी. फायदा उसका क्या है? इसलिए देखो, पॉइंट इज बी लिमिटेड, बी प्रिसाइज एंड प्रैक्टिस rather than reading 5 more topics on articles on a specific topic. Find a question on that topic and write an answer. That will be far more beneficial, क्योंकि you are not writing an essay 10 पन्ने 12 पन्ने का. Maximum you are going to write is 4 pages, and that to the question itself will have 2 to 3 parts. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन क्या है मोतीलाल का? कैन बी राइट आंसर इन बुलेट फॉर्म इन सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ PSIR लाइक IGP, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एटसेट्रा. You see, why do we write in bullet points? क्योंकि यहाँ पे information is precise and you can express a lot in limited words. तो वो हमें यूज कहाँ करना चाहिए? जहाँ पे स्पेस का लिमिट. तो I would suggest कि अगर 10 मार्कर्स वाले हैं ना, वहां पे go for bullet. उसके अलावा कहाँ है? सपोज क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन पर, यू विल से ओके, इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या क्या है? 1 2 3 4 हो गया. सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या है? 1 2 3 हो गया. सो मेक इट अ मिक्स ऑफ पैराग्राफ एंड बुलेट पॉइंट, पैराग्राफ एंड बुलेट पॉइंट, एंड ऑल्सो गिव सब हेडिंग्स, गिव एज मेनी subheadings as possible. Make the life of examiner easier. He will make you happy. He will be happy. He will make you happy by giving better marks. Next is how to prepare IR. Okay. How to manage IR for it. How to prepare IR portion for exam. You see, regarding IR, first is Abhishek, the point is that you are not very much aware about PSI. So since you are not much aware about PSIR, if I suggest you something that can be risky, that can be detrimental even to your GS preparation. So once you get hold of the subject PSIR, then you contact me. I will definitely explain to you. अभी नहीं. Because क्या होता है ना कि unless you are ready for it, इट इज नॉट सुटेबल. क्योंकि मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, मैं आपको बोल दूंगा ठीक है फलाने जगह से पढ़ो आर्टिकल, ORF के लिए जा सकते हो, कार्नेगी के लिए जा सकते हो, किसी दूसरे सोर्स का मैं नाम बता दूं. लेकिन फायदा क्या होगा? यू विल रीड दैट आर्टिकल
बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर, अगर आपको वो पता नहीं रहेगा तो आपका समय भी जाएगा, फायदा भी नहीं होगा। तो अभी नहीं, बिकॉज हर कुछ समय हर कुछ समय के साथ बताते हैं ना यार, ऐसे थोड़े ना कुछ भी पूछो कुछ भी बताऊंगा, पता चला। बिकॉज कई बार होता है ना, दवाई देनी होती है फीवर उतरने की, तो सपोज करो आपका टेम्परेचर ऑलरेडी 98 99 है, मैंने दवाई दे दी फीवर उतरने की, पता चला बंदा ही उतर गया। इसलिए उसके पहले कम से कम फीवर तो एक बार जांच लें। इंसुलिन देना है लेकिन पहले चेक तो कर लें शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर नॉर्मल है, मैंने इंसुलिन दे दिया उल्टा डिप हो गया। इसलिए मैं किसी को ब्लाइंडली कुछ भी इसीलिए रेकमेंड नहीं, अनलेस आई नो योर स्टेटस आई वॉन्ट रेकमेंड एनी। ओके, अब थोड़ा सा आते हैं आंसर राइटिंग के ऊपर, जो कि सम ऑफ यू हैड आस्क्ड। तो इसी देखो आंसर राइटिंग और इसी के साथ एसोसिएटेड है नोट्स में। तो when you make your notes, first of all do not make your notes in the today I read I am going to make notes, वो notes किसी काम का नहीं होगा, it will be 90% of what your class notes are, never do that, read it once then again revise it, and after that write down only those things that you think are important and you think you can forget. नोट्स का पर्पस क्या होता है, that if I see this one particular word I can remember one whole paragraph of my notebook. So unless you have made 2 revisions, do not go for it. And when you make notes, ensure that whatever idea, for example, suppose करो and I am taking one topic, वो ये PSIR का है, important है. For example, there is a thinker, very first thinker called as Plato, PSIR में. उसका एक आइडिया है थियोरी ऑफ फिलोसफर की, ठीक है। सो व्हेन यू राइट थियोरी ऑफ फिलोसफर किंग और इसके साइड में 2 लाइन या 1 लाइन लिख दिया, सो दैट आई कैन while revising with that 1 line I can remember this whole. इतना सिर्फ नहीं लिखना है, उसके बाद यू हैव टू सपोर्ट में इसके कौन सा स्कॉलर है एंड हु आर द क्रिटिक्स, कम से कम एक एक, इफ प्रिफरेबल 2-2। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप हॉब्स की बात कर रहे हो, अगला स्कॉलर है, हॉब्स का जो आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर है, ठीक है, तो इसके स्टेट ऑफ नेचर व्हाट इट इज, हु हैव सपोर्टेड इट एंड हु हैव अपोज्ड और क्रिटिसाइज्ड। इस तरीके से हमेशा नोट व्हाट, और अगर सपोज करो इन योर नोट्स यू डू नॉट हैव क्रिटिक, सर्च ऑन द नेट and from there put it in whatever it is. इंडियन फेडरलिज्म टॉपिक है, सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट, डेटा फैक्ट, अपोजिशन में आर्ग्यूमेंट, because you see when we are talking about answer writing in any humanities subject, I am not just talking about PSI, it always goes in a debate form, जिसे कि PSIR में आप पढ़ लोगे, कहते हैं थीसिस, एंटीथीसिस, और इन सब को मिलाकर जो आया वो सिंथेसिस। So if there is a question, intro, you will explain it
who have supported it, supporting argument, who have supported it, argument, opposed or critic, और लास्ट में क्या आएगा, conclusion. This can be your own conclusion. This can be what some other scholar had said, or it can even be talking about the relevance. यही रहेगा. And again that depends ki what is the structure. Point is most of you are focusing towards 2025, so it is not suitable for me to discuss about answer writing, because for answer writing first you need to know the subject. Second phase is understanding the question demand. Third is structuring the answer. Then comes the writing. So that is why in my PSIR foundation there will be dedicated sessions for answer writing, PYQ discussion and regular tests, so that after your foundation is over you need not run from here to there ki how I should improve my answer writing. It is my guarantee that as your foundation will be over, your answer writing will also be rock solid, and this answer writing will help you improve your answer writing in GS. Similarly, as GS answer writing will help you improve your optional answer writing, because ultimately it is about that debate and discussion. Okay. Please give note making tips. Only support or critic scholar name or with views. Naturally with views. That depends. Suppose there is some very known scholar and whose views you already know, you might skip on the views, because you anyway you remember it. So note making का purpose क्या है? ऐसी the things that I might forget, or the things which are too important that I must not miss out on. Notes का वही purpose होता है ना, इतने को देखने से I can recall whole those 400, 500, 700 page notes. So naturally thinker, because without view what is the point of a thinker? Plato के केस में हम बोलेंगे however Popper has criticized Plato. Why Popper has criticized Plato? What has Popper said about Plato? वो important है ना. नाम तो मैं किसी का भी लिख दूं, but उसने कहा क्या है, that is important. तो naturally आप view के साथ लिखोगे. हाँ एग्जाम दो, मैं भी वहां पे वही देख रहा था. आई एम सीइंग नाउ प्लेटोज आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग. ठीक है, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर नोट्स, आप लिखोगे ठीक है, व्हाट इज दैट आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग. ठीक है ना. उसके बाद व्हाट इज द पर्पस. प्लेटो ने ऐसा किया कि व्हाई द आइडिया ऑफ, इन ऑर्डर टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट. ठीक है, उसके थ्रू पर्पस उसका क्या है. देन कम्स अबाउट द सपोर्ट. ठीक है, देन यू विल टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म. व्हाई सपोर्ट के बारे में क्यों कहते हैं, बिकॉज वो खुद कहता है ना, इट इज स्टूपिड टू लिमिट expert book of medicine with the expert of medicine with the book of medicine. So all these key statements वो भी अपने नोट्स में पक्का रखो, because in your answers try to punctuate your answer with those statements. लिखा उसे अंडरलाइन किया, लिखा उसे बॉक्स में डाला. उसके बाद क्रिटिसिज्म. एरिस्टोटल ने अगर कहा है, एरिस्टोटल ने क्या क्रिटिसाइज किया है, law is reason without passion. Authority of statesman is different from that of a master. So but the moment you are writing that authority of statesman is different from that of a master, why Plato है, Aristotle है, एक लाइन में explain. और उसके बाद conclude.
कंक्लूड कैसे करेंगे हम? वी विल कंक्लूड विथ टेकिंग साइड that it might lead to totalitarianism. However, the purpose of Plato was to create an ideal state. या फिर Aristotle's idea is good in theory but seems impractical as it might lead to a totalitarian state. तो हमने यहाँ पे कंक्लूड किसके साथ किया? रेलेवेंस के साथ। और क्योंकि अल्टीमेटली इन कंक्लूजन इट शोज योर थिंकिंग, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। ओके, आई होप नो वन इज देयर रिगार्डिंग note making answered, answer writing answered. In case you have got any other doubt, you can always ping me, you can reach out, we shall be at this. Thank you very much.